Welcome to second part of lecture number 9. In first part of this lecture, we have briefly introduced the field astronomy, and also we have discussed in detail the different terminologies which are involved in the field astronomy or in the astronomical survey. So, in first part of this lecture, we have discussed these different terms, which are the celestial sphere, zenith, the nether point, and the zenith nether line, the celestial horizon, the sensible horizon, and celestial equator. Also, we have discussed the terrestrial equator, the polar axis, and uh, pole points, and the ecliptic, which we have discussed in detail, and the celestial meridian, and vertical circle, prime vertical, the latitude, co-latitude, and longitude, altitude, co-altitude, the azimuth, the declination, co-declination, and hour angle. So these are the basic terms which you must know before going into the quantitative discussion of the astronomy. Now, in this part, we will discuss the quantitative description of the field astronomy. So, see, uh, we are considering all the heavenly bodies, mean planets, stars, all of the celestial bodies we are considering in on a surface of a sphere, and the earth is considered as a center point of that sphere. Yeah, individually we are considering the earth as a sphere, okay, and the center of the earth will be considered as the center of the sphere. And if we are considering earth is a center point in all the celestial bodies, uh, is a surface of the sphere, then the radius of that sphere will be infinite. So, from the conclusion of the first part of this lecture, we can say that a sphere is a solid bounded by a surface. Okay, if you are considering this whole universe, we can say, if we are considering all of the stars or planets on the surface of the sphere, and Earth is its center point, so it will be a sphere which is bounded by the surface. In all of the heavenly bodies will lies on the surface of this celestial sphere. Okay, and remember, uh, the main characteristic of the sphere is that each and every point on the surface of the sphere will be at equal distance from the center of the sphere. This is the characteristics, या ये इसकी main parameter है कि sphere की surface पे हर एक point जो है वो एक reference point से equal distance पे होगा, and that reference point is called the center point. So now, in the celestial sphere, we are assuming Earth is the center point. तो इसकी celestial sphere की surface पे जो भी point होगा, from the point we mean any star, any planet, या moon, या sun, it will be at equal distance from the center of the sphere. We can say that from the Earth. So a sphere is a solid which is bounded by a surface, and every point on the surface of the sphere will be at equal distance from the center point. Okay, and is also we know from the drawing concept कि स्पेयर जो है, अगर एक आपके पास अगर एक सर्कल है ना, इस सर्कल को आप 360 डिग्री में रिवॉल्व कर लें तो आपके पास एक सरफेस एक स्पेयर बन जाएगा। या अगर आपके पास एक सीमी सर्कल है, एक सीमी सर्कल है
इसको आप 360 डिग्री में रिवॉल्व कर लें तो आपके पास एक स्फेरिकल ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएगा. Okay, so if we revolve a semicircle about its diameter, then we will get a spherical object. अच्छा, now a radius of sphere जो है, that is a straight line which is joining any point on the surface to the center point. ठीक है, अब हमारे पास ये सेलेस्टियल स्फीयर है ना, इस सेलेस्टियल स्फीयर की सरफेस से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले सेंटर तक, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इट विल बी कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, नाउ एक और टर्म हम यूज करते हैं, आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, कि अगर इस स्फीयर के अराउंड हम इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका रेडियस जो है वो स्फीयर के रेडियस के बराबर हो, it will be called a great circle. Okay, so we can draw a number of great circles. मीन अगर आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक फॉर एग्जांपल एक बॉल है या फुटबॉल है, तो उसकी सरफेस पे आप इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका सेंटर जो है वो स्फीयर के सेंटर के बराबर हो, it will be called a great circle. Okay, और अगर इस स्फीयर के अराउंड हम इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर ले जिसका रेडियस जो है वो स्फीयर की रेडियस के बराबर ना हो, इट विल बी कॉल्ड अ स्मॉल सर्कल. ठीक है, सो अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ अराउंड द स्फीयर और इसका रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर हो, तो ये हमारे पास ग्रेट सर्कल होगा. अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे मैं इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ अराउंड द स्फीयर, इस तरह एक ग्रेट सर्कल में ड्रॉ कर लूँ अराउंड द स्फीयर, सो यू कैन सी दैट कि इसका जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर से कम है, सो दैट इज कॉल्ड द स्मॉल सर्कल. सो अ सेक्शन ऑफ स्फीयर will be called a great circle when the cutting plane passes through the center of the sphere. इस तरह भी हम कह सकते हैं ना कि अगर स्फीयर के अराउंड आप इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम हो, इट विल बी कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल. ठीक है, एंड अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर विल बी कॉल्ड अ स्मॉल सर्कल व्हेन द कटिंग प्लेन डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर. मीन इस तरह आप यहाँ पे एक कट लगाएं, मीन एक सर्कुलर कट लगाएं, तो देखें ये जो कटिंग प्लेन है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, सो इट विल बी कॉल्ड अ स्मॉल सर्कल. So now the shortest distance between any 2 points on the surface of a sphere is along an arc of a great circle. देखें, अगर आपके पास इस स्फीयर के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट हो, यहाँ पे हम सपोज हमारे पास A पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास B पॉइंट है, तो अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या होगा. अब देखें, अगर इस A पॉइंट से हम स्टार्ट ले लें और इस स्फीयर के अराउंड एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है, मीन इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें कि ए बी पॉइंट से पास हो जाए, मीन अराउंड दिस स्फीयर हम इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें कि ए बी पॉइंट से पास हो जाए, तो ये ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी इन आर्क ऑफ दैट ग्रेट सर्कल. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं ना कि ये इस ग्रेट सर्कल का एक आर्क है. मतलब ये है कि इस पॉइंट को आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें और इस पॉइंट को आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्रेट सर्कल का एक आर्क बन जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ ग्रेट सर्कल. मीन अगर एक स्फीयर के अराउंड आप एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, तो उस ग्रेट सर्कल के ऊपर अगर आपके पास 2 पॉइंट हो, तो उनकी दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट लीनियर डिस्टेंस है, वो कितना होगा. ठीक है, तो देखें, ये जो ब्लैक लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ काइंड ऑफ स्फीयर. अब इस स्फीयर के अराउंड अगर यहाँ पे हम ये सर्कल ड्रॉ कर लें, सो यू कैन सी दैट कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो इस स्फीयर की
रेडियस के बराबर हैं, सो वी कैन कॉल इट अ ग्रेट सर्कल। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट एज्यूम कर लूँ ए पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लूँ बी पॉइंट, सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो ए बी डिस्टेंस है दैट इज द आर्क ऑन दिस ग्रेट सर्कल। ठीक है। तो अब इस ए को पॉइंट को अगर हम सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें और बी को अगर हम सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, सो इट विल मेक सम एंगल। ठीक है, ये कुछ एंगल बनाएगा ना, और ये क्या होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस ग्रेट सर्कल। रिमेंबर, this radius will be equal to the radius of this sphere। so अगर हम celestial sphere की बात करेंगे तो वो रेडियस जो है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। और अगर हम अर्थ को कंसिडर करते हैं एज अ स्फीयर, तो फिर अर्थ के ऊपर जो दो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ ज्वाइन कर लें, तो उस अर्थ का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा। ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस अ ग्रेट सर्कल। इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स कंसिडर की हैं, ए बी पॉइंट है, तो ए बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है that will be equal to, yeah, we can say that the length of the arc on the great circle will be equal to r pi। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास ना, s is equal to r theta। so we can say that the length of an arc on a great circle will be equal to the radius of the sphere multiplied by the angle subtended by the arc with the center of the sphere। ठीक है। और ये जो arc है, it will be on the great circle, remember। ठीक है। so the length of a great circle is equal to the angle subtended by the arc with the center of the sphere multiplied by the radius of the sphere। so अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो रेडियस जो है ये क्या होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है। फिर दूसरा एक टर्म हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ स्मॉल सर्कल। नाउ सी, यहाँ पे ये तो हमारे पास ग्रेट सर्कल है ना, जिसका सेंटर जो है स्फीयर के सेंटर के बराबर है। अब अगर यहाँ पे अराउंड द स्फीयर अगर मैं इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो आप देखिए इसका जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर से कम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉल सर्कल होगा। अब अगर इस स्मॉल सर्कल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है which we represent by small a, and this is the point which we represent by small b। ठीक है, या more easily अंडरस्टैंड कर लो इसको। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास स्फीयर है, इसको आप अर्थ एज्यूम कर लें। ये जो ब्लैक सर्कल है, सॉरी ब्लैक स्फीयर है, ये हमारे पास अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड ये हमारे पास ग्रेट सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। ठीक है। सो इस नॉर्थ पोल को अगर हम ज्वाइन कर लें सेंटर के साथ और इसको एक्सटेंड कर ले साउथ की तरफ, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है। नाउ ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब देखें, अगर इस ए पॉइंट को मैं नॉर्थ के साथ ज्वाइन कर लूं, ये जो ए पॉइंट है हमारे पास, इस तरह हम एक ग्रेट सर्कल अगर ड्रॉ कर लें जो नॉर्थ से और इस ए पॉइंट से और साउथ पोल से पास हो जाए इन अराउंड द स्फीयर, इस तरह एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले कि नॉर्थ साउथ और इस पॉइंट से पास हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ दिस पॉइंट। सिमिलरली अगर हम एक और ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड दी पोल्स, मीन इस तरह स्फीयर की अराउंड हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले कि नॉर्थ पोल से बी पॉइंट से और साउथ पोल से पास हो जाए, तो इट विल बी कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ पॉइंट बी। ठीक है।
अब ये एन एस लाइन जो है, ये एन एस लाइन जो है ये क्या है, ये हमारे पास एक्सेस है ना, स्फेयर का एक्सेस है। अच्छा, नाउ यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस जो है स्फेयर की रेडियस से कम है, सो इट विल बी कॉल्ड अ स्मॉल सर्कल। अब देखें, इस ए का जो मेरिडियन है ये इस स्मॉल सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल ए, और बी का जो मेरिडियन है ये स्मॉल सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल बी। अब देखें, एक हमारे पास स्मॉल सर्कल है ना, तो जाहिर बात है इसका जो रेडियस है इट विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ द ग्रेट सर्कल। तो अगर इसका रेडियस कम है तो इसका सरकमफेरेंस भी कम होगा, ठीक है। एंड आल्सो अब देखिए, ये ए पॉइंट को हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है, बी को हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है दैट इज द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क। सिमिलरली अगर इस ए पॉइंट को मैं एक्सेस के साथ ज्वाइन कर लूं और बी पॉइंट को मैं एक्सेस के साथ ज्वाइन कर लूं, सो अगेन यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। ये जो स्मॉल ए बी वाला आर्क है ना, इट विल सबटेंड दिस एंगल। एंड रिमेंबर हमारे पास अगर ये एक्सेस है ना, इसको ए को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है और बी को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, सी ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, यहाँ पे ये ए का मेरिडियन है और ये बी का मेरिडियन है, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेट सर्कल है ना, ये ग्रेट सर्कल, ये पॉइंट क्या है, दैट इज पॉइंट बी, और ये जो है हमारे पास पॉइंट ए है। अब इन दो पॉइंट को भी हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है। नाउ रिमेंबर ये दो एंगल जो है ये सेम होंगे, इन एंगुलर डिस्टेंस जो है बिटवीन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दीज टू आर्क्स जो है वो सेम होगा, लेकिन इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये डिफरेंट होगा, बिकॉज ये स्मॉल सर्कल है ना, इसका सरकमफेरेंस कम होगा, लेकिन इसका जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री होगा। सिमिलरली जो ग्रेट सर्कल है इसका सरकमफेरेंस ज्यादा होगा बिकॉज इसका रेडियस ज्यादा है, लेकिन सेंट्रल एंगल इसका टोटल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। So the angle which is subtended by these two arc it will be same, लेकिन आर्क का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा बिकॉज रेडियस इज डिफरेंट है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस आर्क व्हिच इज ऑन द स्मॉल सर्कल, ठीक है। एंड दूसरी बात, फॉर एग्जांपल ये O1 है व्हिच इज द सेंटर ऑफ दिस आर्क, और ये हमारे पास O है जो मेन सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है। तो अब देखें, ये जो O1 A line है that will be parallel to OA line, O1A OA को पैरेलल होगा और O1B जो है ये OB को पैरेलल होगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों, ये A पॉइंट और B पॉइंट हमने एक्सेस के साथ ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी ये A और ये कैपिटल B पॉइंट हमने एक्सेस के साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये OB OA और OB ये क्या है, ये इस ग्रेट सर्कल की रेडियस के बराबर होगा। ये स्मॉल A और O1, स्मॉल B और O1 ये स्मॉल सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, लेकिन O1A will be parallel to OA and O1B will be parallel to OB। अच्छा, now we can say that आर्क, देखें अगर रेडियस कम हो रहा है तो आर्क भी कम हो रहा है, सो रिस्पेक्टिव रेशियोज जो है ये सेम होंगे। वी कैन से दैट आर्क ए बी डिवाइड बाय आर्क ए बी विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये जो स्मॉल सर्कल है सपोज इसका रेडियस r1 है, सो इट विल बी इक्वल टू r1 डिवाइड बाय r। इन अगर आर्क
सॉरी, अगर रेडियस कम हो रहा है, सरकमफेरेंस कम होगा, तो यहाँ पे आर्क का लेंथ भी कम होगा। रेडियस और आर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस कम हो रहे हैं तो आर्क भी कम हो रहे हैं, तो दोनों आर्क्स की जो रेशोज हैं ये दोनों रेडियसेस की रेशोज के बराबर होगा। ठीक है। आल्सो वी कैन से दैट ये जो स्मॉल आर्क है हमारे पास ए बी, it will be equal to R1 multiplied by the angle subtended by this arc। और ये आर्क जितना एंगल बना है ये ग्रेट सर्कल आर्क के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये जो N और O और A ये एंगल जो है this will be 90 degree angle, remember, because ये जो ग्रेट सर्कल है ना ये इस एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर है। सो एंगल एन ओ और ए ये 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है। नाउ लेट मी चेंज द कलर। अब अगर ये जो ए पॉइंट है ना इसको मैं स्फेयर के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं, ए पॉइंट को सेंटर ऑफ द स्फेयर के साथ ज्वाइन कर लें, तो आप देखें ये एंगल ए ओ और ए ये एंगल क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, कि ए पॉइंट जो है इस इक्वेटर से कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है, सो वी कॉल्ड इट लैटिट्यूड। ठीक है, और ये ए से एन तक बाकी ये जो डिस्टेंस रह जाएगा वी कॉल्ड इट कोलैटिट्यूड। तो अच्छा, अब देखिए ये O1 और ए जो है ये रेडियस है विच इज पैरेलल टू दिस OA। तो यहाँ पे देखें ये AO1 और O, यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट याद रखें, बिकॉज O1 और A क्या है, O1 और A OA को पैरेलल है और OA ON को परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये है कि AO और सॉरी AO1 और O1O जो है यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल आई कॉल इट अल्फा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना हमारे पास, AO1 और O, AO1 और O, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अब ये अल्फा जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू, देखें साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू अपोजिट, तो ये अपोजिट क्या है, दैट इज R1 which is the radius of the small circle डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है OA, मीन ए पॉइंट को हमने जो मेन सेंटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये एक स्मॉल ए जो है दैट इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसको हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R। Now sin alpha 1 is equal to, see as we have discussed सॉरी ये अल्फा 1 नहीं है, अल्फा ही है, नहीं, या इसको हमें जो अल्फा एंगल लिखा हुआ है R1 by R is equal to arc AB डिवाइड बाय arc AB। ठीक है, मीन R1 by R जो है ये arc स्मॉल AB डिवाइड बाय arc कैपिटल AB के बराबर है, तो R1 by R इसको बराबर कर लें। अच्छा, अब देखें अगर ये एंगल अल्फा हो तो ये एंगल क्या होगा, इट विल बी 90 माइनस अल्फा, इट विल बी 90 माइनस अल्फा, बिकॉज पूरा ये जो एंगल है एन ओ और कैपिटल ए
ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। तो अगर एंगल एन ओ और स्मॉल ए ये अल्फा हो, तो ये जो दूसरा एंगल है ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको हम 90 माइनस अल्फा फिर कह सकते हैं। अच्छा, नाउ अल्फा वन क्या हो जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो एंगल है ना ये क्या होगा, देट विल बी द लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट ए। मतलब ये है कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, मीन ये थीटा क्या है, ये ए का लेटीट्यूड है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर लें, सो वी विल गेट दिस वन, सी साइन 90 माइनस अल्फा, सॉरी 90 माइनस थीटा, बिकॉज दोनों एंगल का सम 90 के बराबर है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, दैट इज द लेटीट्यूड ऑफ पॉइंट ए। सो साइन अल्फा मीन साइन 90 माइनस थीटा is equal to length of the small arc divided by length of the great arc। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सो यू विल गेट cos theta it will be equal to AB divided by AB। ठीक है, या ये स्मॉल ए बी क्या है, ये स्मॉल आर्क का लेंथ है। सो दैट ए बी विल बी इक्वल टू length of the great circular arc multiplied by cos of latitude of point A। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी द लेंथ ऑफ द स्मॉलर आर्क। ठीक है, अगेन कंक्लूजन हम इसका निकाले तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि सपोज अगर ये आपके पास एक अर्थ है, मीन एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल अर्थ है हमारे पास, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ द स्फीयर है। इस एक्सिस ऑफ द स्फीयर को अगर हम यहाँ पे एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले, जिसको जनरली हम इक्वेटर भी कहते हैं, तो इसका जो रेडियस होगा वो इस स्फीयर की रेडियस के बराबर होगा। अब इस ग्रेट सर्कल के ऊपर अगर हम ये दो पॉइंट्स ले लें, तो ये जो डी ई डिस्टेंस है, डी ई डिस्टेंस जो है दैट इज द अर्थ ऑफ द ग्रेट सर्कल, it will be equal to radius of the sphere multiplied by pi, which is the angle subtended by this arc। ठीक है, अब देखें अगर इस पॉइंट को हम पोल के साथ ज्वाइन कर लें, ऊपर और नीचे पोल के साथ ज्वाइन करें, तो ये क्या होगा, इस तरह एक ग्रेट सर्कल हम ड्रा कर लेना अराउंड द स्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ पॉइंट डी। सिमिलरली ई पॉइंट को आप अपर पोल के साथ ज्वाइन कर ले और लोअर पोल के साथ ज्वाइन कर ले, सो इट विल बी कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ पॉइंट ई। नाउ कहीं भी आप एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर ले अराउंड द स्फीयर, हम ये स्मॉल सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो डी और ई का मेरिडियन है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया बाय दिस स्मॉल सर्कल। ठीक है, जो अब हमारे पास ये डी ई क्या है, ये स्मॉल सर्कल का अर्क है। डी क्या है, ये स्मॉल सर्कल का अर्क है। तो अब देखिए सर्कल स्मॉल है, इसका रेडियस स्मॉल है, इसका सरकमफेरेंस स्मॉल होगा। तो देखें ये जो स्मॉल सर्कल पे अर्क है ना, ये इस कैपिटल डी ई अर्क से कम होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, अब देखिए ये डी पॉइंट कहाँ पे है, ये इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो इस ग्रेट सर्कल से, इस इक्वेटर से इसका ये जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटीट्यूड कहते हैं। तो अब देखें ये स्मॉल सर्कल जो है, इस स्मॉल सर्कल की ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस स्मॉल सर्कल की ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेटर से इक्वल लेटीट्यूड पे है, मीन इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है,
तो अब इस स्मॉल सर्कल के ऊपर ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो ये लीनियर आर्क डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस ग्रेट सर्कल, length of the arc on the great circle multiplied by cos of latitude of this small circle। मीन इस स्मॉल सर्कल पे हर एक पॉइंट का जो लेटीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड रिमेंबर अगर आपके पास इस तरह स्फेयर के अराउंड आप एक सर्कल ड्रॉ कर ले, स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लें जिसका लेटीट्यूड इक्वेटर से, मीन इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ना इसको हम लेटीट्यूड कहते हैं। सो इस तरह अगर एक स्मॉल सर्कल आप ड्रॉ कर ले जिसकी हर एक पॉइंट का लेटीट्यूड सेम हो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। सो द arc on the small circle will be equal to the arc on the great circle multiplied by cos of latitude of small circle। so ये हमारे पास concluding equation, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक important टर्म है स्फेरिकल ट्राइंगल। देखें अगर हमारे पास एक स्फेयर है, आइदर इट इज अर्थ, अगर हमारे या सेलेस्टियल स्फेयर है, इस सेलेस्टियल स्फेयर के ऊपर अगर हम 3 ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, जिस तरह यहाँ पे देखें एक एक ये ग्रेट सर्कल है ना अराउंड दिस स्फेयर हमने ड्रॉ किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ये ग्रेट सर्कल है अराउंड दिस स्फेयर, एक ये ग्रेट सर्कल है अराउंड दिस स्फेयर। तो आप देखिए ये तीनों सर्कल जो है दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। सपोज अगर इन सर्कल्स को हम नेम दे दें कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल नंबर 2 है और ये सर्कल नंबर 3 है, 3 सर्कल्स है, ग्रेट सर्कल्स है, मीन इनका जो रेडियस है वो स्फेयर की रेडियस के बराबर है, ठीक है। स्फेयर के अराउंड आप 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लें, 3 ग्रेट सर्कल्स ड्रॉ कर लें। सो यहाँ पे देखें दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल 1 एंड सर्कल 3। This is the point of intersection of circle 1 in circle 2. This is the point of intersection of circle 2 and circle 3. तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखें अगर इन 3 पॉइंट्स को हम इस तरह सेपरेट करके या इसको हम इस तरह ज्वाइन कर लें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है। A spherical triangle is bounded by 3 arcs of great circle। यहाँ पे देखें ये क्या है, ये सर्कल 1 का आर्क है, ये जो है ये सर्कल 2 का आर्क है और ये जो है ये सर्कल 3 का आर्क है। तो अगर हमारे पास 3 ग्रेट सर्कल की आर्क्स कंबाइन हो जाए सो इट विल फॉर्म अ स्फेरिकल ट्राइंगल। Yeah, a spherical triangle is an angle. Sorry, a spherical triangle is a triangle which is subtended on the surface of the sphere by intersection of 3 great circles। ठीक है, तो इनके दरमियान देखिए ये एक एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, that is called the spherical angle। So a spherical angle is an angle between 2 great circle। ठीक है, ये एंगल 1 सॉरी एंगल ए जो है ये सर्कल 1 और 3 के दरमियान एंगल है, एंगल बी जो है ये सर्कल 2 और सर्कल 1 के दरमियान एंगल है, एंगल सी जो है ये सर्कल 2 और सर्कल 3 के दरमियान एंगल है। सो स्फेरिकल एंगल इज एन एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बिटवीन द 2 ग्रेट सर्कल, ठीक है। और इस एंगल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, देखें ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है फॉर सर्कल 1 एंड सर्कल 3। ये पॉइंट क्या है, ये सर्कल 1 पे भी होगा और सर्कल 3 पे भी होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर सर्कल 3 को हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें और इस पॉइंट के ऊपर सर्कल 1 को हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल होगा it will be called the spherical angle of this spherical triangle। Similarly, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम सर्कल नंबर 2 को टेंजेंट ड्रॉ कर लें
और सर्कल नंबर 1 को टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो इनके दरमियान ये जो एंगल होगा ये इस स्फेरिकल ट्राइंगल का एंगल भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, तो ये जो एंगल बनाएगा ये इस स्फेरिकल ट्राइंगल का एंगल नंबर सी होगा। ठीक है, सो स्फेरिकल एंगल जो है इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मीन जिन पॉइंट पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे दोनों एंगल को टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो उन टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो स्फेरिकल एंगल होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो स्फेरिकल ट्राइंगल है, इसमें ये जो कैपिटल ए बी और सी है, दीज आर द स्फेरिकल एंगल। इस एंगल को अपोजिट ये जो साइड है, सिमिलरली इस एंगल को ये अपोजिट साइड है और एंगल बी को ये भी अपोजिट साइड है। सो दीज आर द साइड्स ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल। एंड रिमेंबर, इनकी जो साइड्स हैं इनको भी हम एंगुलरली मेजर करते हैं, बिकॉज देखें ये जो सी एंगल का पॉइंट है ना, इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, और ये जो एंगल ए का पॉइंट है इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा ना ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये एसी आर्क बन जाएगा। तो ये एसी आर्क जितना एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ, इट विल बी द साइड ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल। सिमिलरली ये पॉइंट सी सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले, पॉइंट बी सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले, तो ये जो एंगल बना रहा है दैट इज एक्चुअली दिस साइड ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि स्फेरिकल ट्राइंगल की साइड और एंगल दोनों हम एंगुलरली मेजर करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो साइड है ना स्फेरिकल ट्राइंगल का, ये क्या है, ये ग्रेट सर्कल का एक अर्क है, तो ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा ये उसका साइड होगा। ठीक है, फिर स्फेरिकल ट्राइंगल की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये जो स्फेरिकल ट्राइंगल है इसका कोई भी एंगल जो है, अगर किसी भी एंगल को आप ले लें, सो इट विल बी लेस देन 180। मतलब ये है कि एंगल ए विल बी लेस देन 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी, एंगल सी, मीन these mean any angle of the spherical triangle will be less than 180 degree. ठीक है, अच्छा, the sum of the three angle will be less than 540। मीन अगर तीनों एंगल को आप सम कर लें, ये स्फेरिकल ट्राइंगल की जो तीन एंगल्स हैं इनको अगर आप सम कर लें, इट विल बी लेस देन 540। ठीक है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसकी स्फेरिकल ट्राइंगल की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एंगल जो है वो 180 से ज्यादा नहीं होगा, मीन 180 से कम होगा, और सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल जो है वो 540 से कम होंगे। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ये इन दो साइड का जो सम है ना ये साइड सी से ग्रेटर होगा। सिमिलरली b प्लस सी जो है वो a से ग्रेटर होगा, या a प्लस सी जो है वो b से ग्रेटर होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है स्फेरिकल ट्राइंगल की वो ये है कि अगर किसी भी दो एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर हो, फिर थर्ड एंगल जो है वो भी 180 के बराबर होगा। मीन इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, then the sum of the other angle will be also 180 degree. For example, अगर एंगल A और एंगल B जो है सपोज ये 180 के बराबर हो, तो एंगल C जो है ये भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, या अगर एंगल A प्लस एंगल C जो है if it is equal to 180, then एंगल B will be equal to 180। सिमिलरली अगर एंगल B प्लस एंगल C 180 के बराबर हो तो फिर एंगल A 180 के बराबर होगा। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि तीनों में से जो भी एंगल स्मॉलर हो तो उनकी अपोजिट जो है
वो साइड तीनों में स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एंगल ए जो है वो बी और सी से स्मॉल है, तो फिर ये साइड ए जो है ये साइड बी और साइड सी से स्मॉलर होगा। ठीक है, मतलब ये है कि स्मॉलर एंगल जो है इट विल बी अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। ठीक है, so these are the different properties of the spherical triangle। so अब देखें, अगर आपके पास on the earth surface 3 पॉइंट्स हो और उन 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, सो इट विल फॉर्म अ स्फेरिकल ट्राइंगल। ठीक है, मीन हर एक साइड जो है वो एक किसी एक ग्रेट सर्कल का एक आर्क होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ on the earth surface if we draw 3 great circles, so we will get a spherical triangle। तो फिर स्फेरिकल ट्राइंगल की हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें 3 एंगल्स होते हैं और उसकी 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, सो अगर व्हेन 3 पैरामीटर्स आउट ऑफ दी 6 पैरामीटर, अगर हमारे पास 3 पैरामीटर्स गिवन हो, सो देन वी कैन कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द 3। इन 3 एंगल हैं और 3 साइड्स है, टोटल 6 हैं, तो इनमें से अगर 3 गिवन हो तो बाकी 3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली एक इक्वेशन है इनके दरमियान के, साइन ऑफ साइड ए डिवाइड बाय साइन ऑफ angle A will be equal to sine of sine of side B divided by sine of angle B। It will be equal to sine of side C divided by sine of angle C। तो एक ये रिलेशनशिप है जिसके जरिए फिर हम बाकी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। या एक और जनरल है कि cos of angle A is equal to, या सॉरी सर देखिए, cos of side A, इन किसी भी साइड का अगर आप cos ले लें तो it will be equal to cos of side B multiplied by cos of side C plus sin of side B multiplied by sin of side C multiplied by cos of angle A। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इस साइड का आप cos ले लेना, it will be equal to the product of the cos of these two side plus the product of the sin of these two side multiplied by cos of this side। तो आप किसी भी की फाइंड कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड कर ले कि cos ऑफ b क्या होगा, सो इट विल बी इक्वल टू cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c प्लस sin ऑफ a sin ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ एंगल b। ठीक है, तो इस तरह आप अनदर इक्वेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि इस स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सम एरिया, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अगर आपके पास 3 पॉइंट है, वो स्फेरिकल ट्राइंगल बना है, तो स्फेरिकल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल is equal to pi r square, which is the radius of the sphere, multiplied by angle A plus angle B plus angle C minus 180 degree divided by 180 degree। ठीक है, मीन अगर आपके पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ना, तो उसका ये एरिया कितना होगा, it will be equal to pi r square, where r is the radius of the sphere, multiplied by sum of the 3 angles minus 180 divided by 180। ठीक है, so these are the basic formulas which are used in the determination of area on the surface of earth। अगर आप उसकी कर्वेचर को कंसिडर करते हैं या अर्थ को अगर आप एज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं।
ठीक है, अच्छा जी, इट वाज द एरिया ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल. Other important term here which we have also discussed in the first part of this lecture, latitude and longitude है. So अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं भी हमारे पास एक पॉइंट है, so the position of that point, the position of that place on the earth surface will be specified by means of latitude and longitude. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओ हमारे पास इस स्पेयर का सेंटर है, ठीक है, ये सपोज हमारे पास नॉर्थ पोल पॉइंट है, एक हमारे पास साउथ पोल पॉइंट है, ठीक है. तो ये जो नॉर्थ पोल को सेंटर के साथ ज्वाइन करके साउथ पोल के साथ ज्वाइन कर ले, सो वी कॉल्ड इट द पोलर एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास के एक पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो द ग्रेट सर्कल अगर हम ड्रॉ कर ले इस के पॉइंट से, जो पोल के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे अराउंड द स्फीयर, इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें कि इस पॉइंट से पास हो जाए और पोल्स पॉइंट से पास हो जाए. दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन. इसको हम मेरिडियन कहते हैं. या ये पोल पॉइंट है ना, इसको हम सेंटर और साउथ पोल के साथ ज्वाइन कर ले तो हमारे पास क्या होता है, वो पोलर एक्सिस होता है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट होते हैं. अब इस पोलर एक्सिस को परपेंडिकुलरली अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें अराउंड द स्फीयर, वी कॉल इट इक्वेटर. इसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इक्वेटर कहते हैं. और एक ये हो गया ना हमारे पास एक ग्रेट सर्कल जो पॉइंट से और पोल से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन. इन इस के पॉइंट का मेरिडियन होगा ये. ठीक है, नाउ इस लेटीट्यूड से इस पॉइंट तक अलोंग द मेरिडियन, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो आर्क है, इसका सेंटर के साथ कुछ एंगल होगा ना, सो दैट एंगुलर डिस्टेंस व्हिच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क, इट इज कॉल्ड लेटीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट. मतलब ये भी है कि के पॉइंट को आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें और ये के का जो मेरिडियन है जहां पे इक्वेटर के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, तो इस आर्क से जो एंगल बनेगा इट विल बी कॉल्ड लेटीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट. So latitude of a place is the angular distance measured from the equator towards the pole. नॉर्थ पोल की तरफ हो या साउथ पोल की तरफ हो. ठीक है, तो ये जो ऊपर साइड है इसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर होता है. और इस नॉर्थ से इक्वेटर तक ये 90 डिग्री एंगल होता है. फिर इस इक्वेटर से साउथ पोल तक 90 डिग्री एंगल होता है, तो टोटल 180 डिग्री हो गया. सिमिलरली 180 डिग्री उस साइड पे होगा. ठीक है, तो अब इस इक्वेटर से पोल तक ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो इक्वेटर से पोल तक ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इसको हम लेटीट्यूड कहते हैं, और पॉइंट से पोल तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कोलेटीट्यूड कहते हैं. ये पॉइंट याद रखें. ठीक है, नाउ ये तो लेटीट्यूड हो गया. लेटीट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड लेटीट्यूड टुवर्ड द साउथ इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. मीन अगर पॉइंट साउदर्न हेमिस्फीयर में हो तो उसका लेटीट्यूड जस्ट कन्वेंशन है ना, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और अगर पॉइंट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज दी, देखें ये जो हमने ड्रा किया हुआ है पोल और पॉइंट से जो पास हो रहा है दैट इज द मेरिडियन ऑफ द पॉइंट. एक हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, इंटरनेशनल मेरिडियन है. देखिए दिस इज द इक्वेटर, टेरेस्ट्रियल इक्वेटर. अब इस टेरेस्ट्रियल इक्वेटर को हम एक परपेंडिकुलर मेरिडियन ड्रॉ कर लें, सो इट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन या इंटरनेशनल मेरिडियन. सो अब दो मेरिडियंस हो गए हमारे पास. एक हमारे पास इंटरनेशनल मेरिडियन है, ठीक है, इंटरनेशनल मेरिडियन है ना, ये इंटरनेशनल मेरिडियन जो है ये ग्रीनविच से पास हो रहा है, यूके में एक सिटी है उससे पास हो रहा है. और ये क्या है, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है
ये उसका मेरिडियन है। दोनों मेरिडियन क्या है, इक्वेटर को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये प्राइम मेरिडियन इक्वेटर को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और ये जो है ये इस के पॉइंट का मेरिडियन है जो इक्वेटर को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब इस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें और ये रेफरेंस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। So longitude of a place is the angular distance between the meridian of the point and the standard meridian. Means standard meridian और किसी भी पॉइंट की मेरिडियन के दरमियान जो एंगुलर डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, देखें ये भी है ना, लेकिन longitude जो है that is the angular distance subtended by the point with respect to the prime meridian। अच्छा, इस अर्थ का और इस अर्थ का longitude क्या होगा, वो सेम होगा, लेकिन इस अर्थ का जो लेंथ है और इस अर्थ का जो लेंथ है ये सेम नहीं होगा, बिकॉज ये अर्थ क्या है, ये स्मॉल सर्कल के ऊपर है। ठीक है, और ये अर्थ जो है ये ग्रेट सर्कल के ऊपर है। एंगुलर मेजरमेंट दोनों का सेम होगा, बट अर्क जो है, अर्क लेंथ जो है वो सेम नहीं होगा। तो ये जो अर्क है इसका लेंथ क्या होगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द अर्क ऑन द इक्वेटर, लेंथ ऑफ द अर्क ऑन द इक्वेटर फॉर एग्जांपल दैट इज m multiplied by cos of latitude of this point, इस पॉइंट का जो लेटीट्यूड है, as we have discussed in the previous slide। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो द मेरिडियन जो है हमारे पास किसी भी पॉइंट का, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन से कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है, इट विल बी कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। सो ये जो प्राइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है अराउंड द ग्लोब, again it is dividing the earth in two hemisphere, one is called the eastern hemisphere and second one is called the western hemisphere। so अगर longitude western side पे हो तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और अगर ईस्टर्न साइड पे हो तो ये पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर लेटीट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर पे हो तो ये नेगेटिव होगा। ये जस्ट कन्वेंशन है, जस्ट सिंबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये के पॉइंट है ना, इस तरह हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लें, इस के पॉइंट से इस तरह एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर ले अराउंड द स्फीयर कि वो इक्वेटर को क्या हो, पैरेलल हो। ये जो स्मॉल सर्कल है ना जो के से पास हो रहा है, वो इक्वेटर से क्या है, इक्वेटर को क्या है, इक्वेटर को पैरेलल है। तो इस स्मॉल सर्कल की ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो इक्वेटर से इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे होगा। ये स्मॉल सर्कल पे कहीं भी आप पॉइंट ले लेना, उसका लेटीट्यूड क्या होगा इक्वेटर से, वो सेम होगा। तो ये जो स्मॉल सर्कल है that is called parallel of latitude। In any small circle having same latitude from the equator, that small circle will be called the parallel of latitude। समझ आ रहा है, मीन अब ये हमारे पास एक स्मॉल सर्कल है ना, तो ये स्मॉल सर्कल क्या है, ये एक पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड है, ये अनदर पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड है, ये अनदर पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड है। मीन इस सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो इक्वेटर से इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे होगा। सो दैट इज दिस सर्कल इज कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट एक पॉइंट है हमारे पास, नॉटिकल माइल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉटिकल माइल जो है दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जिस तरह हमारे पास फीट हैं या मीटर हैं जिसके जरिए हम लीनियर डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, सो नॉटिकल माइल जो है दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मोस्टली जो एरोप्लेन्स जो फ्लाई होते हैं स्पेस में, या अगर आप
अर्थ को एज अ कर्वेचर कंसिडर करते हैं, ग्रेट सर्कल हम लेते हैं और फिर ग्रेट सर्कल की जो हम अर्क लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉटिकल माइल्स में। ठीक है, अच्छा इसको इसके जस्ट कंसेप्ट को समझे, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है, और इक्वेटर क्या होता है, ग्रेट सर्कल होता है। मीन इक्वेटर का जो रेडियस है वो इस स्फीयर की रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेटर की ऊपर मैं दो पॉइंट्स लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। मीन किसी भी ग्रेट सर्कल की ऊपर अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, कितने डिस्टेंस पे ले लें कि वो सेंटर के साथ 1 मिनट एंगल बनाए। मीन एक हमारे पास सपोज स्फीयर है ना, स्फीयर के अराउंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेट सर्कल है, उस ग्रेट सर्कल की ऊपर आप दो पॉइंट्स ले लें, लेकिन कितने डिस्टेंस पे, दो पॉइंट इस तरह ले लें कि वो सेंटर के साथ 1 मिनट एंगल बनाए, तो उसका जो अर्क होगा वो 1 नॉटिकल माइल होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉटिकल माइल। मीन अ नॉटिकल माइल is the distance measured along the great circle joining 2 points which subtend 1 minute of angle with the center of the sphere। ठीक है, अगर आपके पास ये एक स्फीयर है और आप देखिए ये हमारे पास एक ग्रेट सर्कल है, इस तरह एक ग्रेट सर्कल है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। अगर ये दो पॉइंट सेंटर के साथ 1 मिनट एंगल बना रहा हो तो इसका जो अर्क होगा वो 1 नॉटिकल माइल हम कंसिडर करेंगे। मीन अगर हमारे पास ये अर्थ है ना, अर्थ की कहीं भी आप एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले, ये इक्वेटर जो है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ग्रेट सर्कल। अब इस इक्वेटर के ऊपर हम दो पॉइंट्स लेते हैं और उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, अगर ये एंगल 1 मिनट हो तो ये जो अर्क है ये 1 नॉटिकल माइल होगा। ठीक है, तो आप देखें 1 नॉटिकल माइल विल बी इक्वल टू, अर्थ के अराउंड अगर हमारे पास ग्रेट सर्कल हो तो उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr। मीन अगर अर्थ के अराउंड हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें तो उसका सरकमफेरेंस जो है वो 2πr होगा। ठीक है, अब पूरी सर्कल में हमारे पास क्या होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, या इस तरह करते हैं, देखें हमारे पास पूरा एक ग्रेट सर्कल है ना, तो उसका पूरा अर्क कितना होगा, 2πr, और सेंटर के साथ उसका एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब सपोज अगर हम इस तरह दो पॉइंट्स ले लें जिनका सेंटर के साथ 1 मिनट एंगल हो, 1 मिनट क्या होता है, 1/60 डिग्री होता है। अगर इसका एंगल ये हो तो उसका अर्क कितना होगा, फॉर एग्जांपल दैट इज x। ठीक है, मीन अगर एंगल आपके पास 360 डिग्री हो तो टोटल अर्क कितना होगा, 2πr। अब अगर हमारे पास एंगल जो है 1 मिनट हो तो उसका अर्क कितना होगा, x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, देखें x इज इक्वल टू 2πr, r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू 3960 माइल्स, इन 3960 माइल्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 5280 पे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 360, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं जस्ट x हमने फाइंड करना है, तो 360 और ये 60 इस तरह हो जाएगा। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट तो x विल बी इक्वल टू 6076.1 फीट। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ के अराउंड आपके पास ग्रेट सर्कल हो, उस ग्रेट सर्कल के ऊपर आप इस तरह दो पॉइंट्स ले लें कि वो सेंटर के साथ 1 मिनट एंगल बनाए, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान
आर्क डिस्टेंस कितना होगा 6067 फीट, और इसको हम 1 नॉटिकल माइल कहते हैं, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर, या इट इज इक्वल टू 6076.1 feet. So the distance between 2 points in nautical mile along the parallel of latitude is called departure. अब देखें, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये एक पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड है ना, इन हर एक पॉइंट का जो लेटीट्यूड है वो इस डिपार्चर से सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब अगर इक्वेटर की ऊपर हम यहाँ पे इस तरह 2 पॉइंट्स ले लें कि वो सेंटर के साथ 1 मिनट एंगल बनाए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 नॉटिकल माइल होगा। अब इस पॉइंट का फॉर एग्जांपल हम मेरिडियन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और इस पॉइंट का हम मेरिडियन ड्रॉ कर लें, तो इस स्मॉल सर्कल की ऊपर अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द डिपार्चर। ठीक है, इसको फिर हम डिपार्चर कहते हैं। ये जितना डिस्टेंस होता है ना, लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, इसकी जो एंगुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और लीनियर जो डिस्टेंस होता है ऑन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दैट इज कॉल्ड द डिपार्चर। ठीक है, so this was the discussions about the some quantifications, yeah, some terms which we are using in the field astronomy. लास्ट इसका जो एक एप्लीकेशन है, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स है, बी पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल ये लंदन है, और सी पॉइंट जो है ये किसी और कंट्री में है, फॉर एग्जांपल इराक में है। 2 पॉइंट्स है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसके ऊपर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बी का जो लेटीट्यूड है इन इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस है ये 51.3 डिग्री नॉर्थ के तरफ है। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पे हम एक प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर ले जो इंटरनेशनल मेरिडियन है, इंटरनेशनल मेरिडियन से बी पॉइंट तक ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये 0.1 डिग्री है, वेस्ट के तरफ है, देखें। ठीक है, और पॉइंट सी जो है उसका लेटीट्यूड 33.2 डिग्री है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 44.26 डिग्री ईस्ट के तरफ है। ठीक है, नाउ वी हैव टू find out the shortest distance between B and C. ठीक है, so देखें प्राइम मेरिडियन से B तक ये डिस्टेंस कितना है 0.1 डिग्री, प्राइम मेरिडियन से C तक ये जो डिस्टेंस है ये 44.26 डिग्री है। ठीक है, तो ये टोटल एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, that will be the sum of these two longitude, and actually वो ये एंगल हो जाएगा spherical triangle का। So we can say that angle A will be equal to 0.1 plus 44.26, it will be equal to 44.36 डिग्री, मीन ये एंगल आ जाएगा हमारे पास इन दोनों मेरिडियंस की दरमियान जो एंगल है, बिकॉज बी का जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन से 0.1 डिग्री है, सी का जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन से 44.26 डिग्री है, तो दोनों मेरिडियंस के दरमियान जो एंगल होगा वो 44.36 डिग्री होगा। एंड रिमेंबर अगर दोनों मेरिडियन सेम हेमिस्फीयर में हो, दोनों ईस्टर्न में हो या दोनों वेस्टर्न में हो, तो फिर उनकी दरमियान जो एंगल होगा वो आपने दोनों लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस लेना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इक्वेटर से बी तक, ये बी का लेटीट्यूड है ना 51.3 डिग्री, तो पोल से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल का जो सी साइड है, देखिए पोल से इक्वेटर तक टोटल कितना होता है 90 डिग्री, इक्वेटर से बी तक ये क्या है लेटीट्यूड है, बी से पोल तक ये क्या है को लेटीट्यूड है, ये क्या होता है 90 माइनस लेटीट्यूड के बराबर होता है। तो ये जो ट्राइंगल का सी साइड है
it will be equal to 90 minus 51.30. So it will be equal to 38.70 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली सी का जो लेटीट्यूड है इक्वेटर से वो ये है, तो सी से पोल तक ये को लेटीट्यूड होगा एंड दैट इज द साइड बी ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल। सो साइड बी विल बी इक्वल टू 90 minus 33.20. it will be equal to sorry क्या हो जाएगा इससे 56 डिग्री एंड 80 मिनट, सॉरी 56.80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब देखिए हमारे पास एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, मीन स्फेरिकल ट्राइंगल की 3 पैरामीटर्स गिवन है, बाकी 3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने बी और सी के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विच इज साइड ए ऑफ दिस स्फेरिकल ट्राइंगल। सो नाउ वी नो फ्रॉम द cos formula that cos of A is equal to cos of B multiplied by cos of C plus sin of A, sorry sin of B, sin of C and cos of एंगल A। ठीक है, तो सारी वैल्यूज गिवन है, B गिवन है, C भी है, या फिर A भी गिवन है। इसको आप सॉल्व कर ले तो आपके पास जो है A आ जाएगा, इट विल बी 34 डिग्री एंड सॉरी हाँ 36 डिग्री 36.74 degree. In this will be the angle subtended by this arc. In B point को सेंटर के साथ अगर ज्वाइन कर ले और C को अगर सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले तो उसका एंगल ये होगा। Remember spherical triangle की साइड्स और एंगल 6 ऑल ऑफ द 6 पैरामीटर्स होते हैं वो एंगुलर मेजरमेंट्स में होते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या गया, ये इस A arc का एंगल आ गया। तो ये A arc जो है that is along the surface of the earth, तो यहाँ से अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लेना तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एक्चुअल लीनियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी r theta. So we know that the radius of the earth is ये जो है 6378 किलोमीटर है मल्टीप्लाइड बाय थीटा एंड रिमेंबर ये थीटा जो है ये आपके पास रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इस तरह भी कर लें कि पूरा ग्रेट सर्कल जो होगा उसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r और उसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब अगर हमने ये आर्क फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज x और इसका जो एंगल है वो 36.74 डिग्री है, तो x क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू मीन r जो है आप रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर लें किलोमीटर में विच इज 6378 किलोमीटर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4089 किलोमीटर। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक जो था दैट वाज इन लंदन, सेकंड जो था दैट वाज इन बगदाद। तो उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज इक्वल टू 4089 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट भूल गया था बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो स्फेरिकल ट्राइंगल है उसमें कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ना, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 90 डिग्री हो तो इसका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा अवेलेबल फार्मूलाज हैं उससे करेंगे। देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है
और ये तीसरा साइड है हमारे पास स्फेरिकल ट्राइंगल का। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, सपोज दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ये हमारे पास ए साइड होगा, ये बी साइड होगा, ये स्मॉल सी साइड होगा। अब इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री हो, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, सो वी कॉल्ड इट राइट एंगल स्फेरिकल ट्राइंगल। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम एक स्टैंडर्ड रूल पे करते हैं, विच इज कॉल्ड दी नेपियर रूल, इसको कहते हैं नेपियर्स रूल। ठीक है, इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लें, इस सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मीन ये जस्ट एक मेथड है सोल्यूशन का, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मीन अगर आपके पास स्फेरिकल ट्राइंगल जो है उसमें अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री हो तो वी विल कॉल इट राइट एंगल स्फेरिकल ट्राइंगल। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम नेपियर रूल पे करते हैं। ठीक है, नेपियर रूल ये है कि एक सर्कल ड्रॉ कर लें, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, अब जो एंगल 90 डिग्री हो ना, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो लिख के अपने लिए ए बी। सपोज अगर एंगल ए 90 हो ना, तो फिर हम क्या लिखते थे, बी एंड सी। अगर एंगल बी 90 डिग्री हो ना, फिर हम क्या लिखेंगे, ए एंड सी। जो एंगल 90 डिग्री है ना, उनकी एडजेसेंट साइड्स लिखें। ठीक है, अब इसके अपोजिट देखें, ये ए बी हमने लिख दिया ना, तो इसका अपोजिट ये पोर्शन है ना। अब यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे जो 90 डिग्री है ना, उसका जो अपोजिट साइड है उसका कंप्लीमेंट लिख के, मीन 90 माइनस सी। पहले हमने क्या लिख दिया, वो एडजेसेंट साइड्स लिख दिया 90 डिग्री एंगल का। फिर इनकी जो अपोजिट है यहाँ पे लिखे 90 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड है उसका कंप्लीमेंट लिख के, और फिर बाकी दो साइड्स जो हैं, मीन यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट लिख के, मीन इसके एंगल का ना, ये ए साइड है, इसका एंगल क्या है, एंगल ए, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस ए। ये क्या है, बी साइड है, इसका एंगल क्या है, ये एंगल बी, इसका कंप्लीमेंट लिख के, दैट विल बी 90 माइनस बी। ठीक है, अगेन देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये साइड ए होगा, ये साइड बी होगा, ये साइड सी होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो क्या करें, जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लें, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जो एंगल 90 डिग्री है उनकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो लिख के बी एंड सी। इनका अपोजिट ये पोर्शन है ना, तो जो एंगल 90 डिग्री है उनका साइड क्या है, ये मीन अपोजिट साइड, इसका कंप्लीमेंट लिख के यहाँ पे 90 माइनस ए। अब ये साइड सी है ना, तो इसका एंगल क्या है, साइड सी का एंगल क्या होगा, एंगल सी है ना, तो इसकी अपोजिट एंगल सी का कंप्लीमेंट लिख के, मीन 90 माइनस एंगल सी। ठीक है, सिमिलरली बी की अपोजिट इसके एंगल का कंप्लीमेंट लिख के, मीन 90 माइनस बी। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी फाइंड करना है, स्मॉल ए फाइंड करना है, स्मॉल बी फाइंड करना है, कैपिटल ए फाइंड करना है, या स्मॉल सी फाइंड करना है, या कैपिटल बी फाइंड करना है, जो भी चीज आपने फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, सो वो ये है कि साइन ऑफ मेडल, मीन ये इज अ मेडल आप कंसिडर कर लेना, साइन ऑफ दिस मेडल, मीन ये मेडल हो गया, ये दोनों इसकी एडजेसेंट है और ये उसके अपोजिट है। मीन अगर आप बी फाइंड करना चाहते हैं ना, तो बी के ये ए और 90 माइनस ए, ये इस बी के एडजेसेंट्स हैं और ये दो इसके अपोजिट है। तो इसका जो साइन है, मीन साइन ऑफ दिस मिडल टर्म,
that will be equal to the product of tangent product of tangent of adjacent। मतलब ये है कि sin B will be equal to tangent A multiplied by tangent 90 minus A। ठीक है, कोई भी आप ले लेना, फॉर एग्जांपल sin ऑफ 90 minus B will be equal to tangent A multiplied by tangent 90 minus C। यहाँ पे देखें, अगर आप इस ये फाइंड करना चाहते हैं ना, तो sin C will be equal to tangent B multiplied by tangent 90 minus B, या sin middle is equal to product of cosine of opposite। इन जो भी चीज आप फाइंड करना चाहते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ, इन जो भी चीज आप फाइंड करना चाहते हैं, तो वो आपका एज अ मिडल टर्म होगा, उसकी जो साइड बाय साइड है वो एडजेसेंट्स होंगे, तो दो उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो ये भी है ना कि cos ऑफ b इज इक्वल सॉरी साइन ऑफ b इज इक्वल टू cos 90 minus b multiplied by cos 90 minus c। सिमिलरली अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं, sin a will be equal to cos 90 minus c multiplied by cos 90 minus a। सो अगर आपके पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल हो तो उसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 9। in first lecture we have discussed the basic terminologies, then in second part of this lecture we have discussed the spherical trigonometry, length of the great circle, length of the small circle, spherical triangle, the properties of spherical triangle, the different formulas which are involved in spherical triangles, latitude and longitude, the parallel of latitude, and nautical miles. Okay, thank you.